اپنے اویسی اسکولز آف ایکسلنس پر AIMIM کی مہر لگا کر مسلمانوں کو یہ بتاتے تھے کہ اکبر صاحب کے فری ایجوکیشنل اسکولز AIMIM کا کارنامہ ہے، اور ہر سال ہم بھی حق کہتے رہے کہ نہیں، یہ AIMIM کا نہیں بلکہ اکبر صاحب کا خود کا کارنامہ ہے، اور وہ اسکولز AIMIM کے نہیں ہے بلکہ اکبر صاحب کے خود کے ہے، جو سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذریعے سے چلائے جاتے ہیں۔ ہمارے بار بار کہنے پر الحمدللہ اکبر صاحب نے اس بات کو قبول کیا اور جلسے تقاریر کے ذریعے یہ صاف کہہ دیا کہ ہاں، وہ اسکولز AIMIM کے نہیں ہے بلکہ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ہیں، جو خود اکبر الدین اویسی چلاتے ہیں۔ اسی طرح اویسی اسکولز آف ایکسلنس پر سے AIMIM کا برانڈ نکال دیا گیا، لیکن ابھی بھی چند حقائق ایسے ہیں جسے اکبر الدین اویسی صاحب کو تسلیم کرتے ہوئے مسلمانوں کو بتانا ہوگا۔ وہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، 65 برس کے اس سفر کے آغاز کے وقت 1156 کا خرچ تھا، تو جملہ آمدنی 7015 روپئے تھے اور خرچ 7165 روپئے کا تھا، اور آج مجلس اتحاد المسلمین کے اثاثے ہزاروں کروڑ میں ہیں۔ 65 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین پر 1156 روپئے کا خرچ تھا، اور آج 10,000 کروڑ سے زیادہ کے اثاثے ہے۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ بتائیے کہ 65 سال میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس 10,000 کروڑ سے زیادہ کی آمدنی کیسے ہو گئی؟ مجلس اتحاد المسلمین ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، کوئی کمرشل آرگنائزیشن تو نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹی کوئی کاروبار، دکان یا دھندا تو نہیں کرتی، نہ کچھ بیچتی ہے اور نہ پولیٹیکل پارٹی سے عوام کچھ خریدتی ہے۔ تو پھر ایک پولیٹیکل پارٹی مجلس اتحاد المسلمین 65 سال میں 10,000 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کیسے اور کہاں سے کی؟ اور یہ ہزاروں کروڑ کے اثاثے تقریروں کے علاوہ کہاں پر درج ہے؟ 65 سال میں 10,000 کروڑ یعنی ہر سال 155 کروڑ، اور ہر مہینہ قریب 13 کروڑ کی آمدنی ایک پولیٹیکل پارٹی کو کیسے ہوئی؟ مجلس اتحاد المسلمین 65 سال سے کیا کاروبار کر رہی، کیا پروڈکٹ اور سروسز بیچ رہی، اور اسے کون خرید رہے ہیں جسے ہزاروں کروڑ کا فائدہ ہوا؟ اور ایک بات آپ مسلمانوں کو ضرور بتانا کہ 65 سال سے مسلمان مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ کیوں دے رہے؟ اپنی فلاح، ترقی، سہولتیں، سکون کی زندگی اور ڈیولپمنٹ کے لیے ووٹ دے رہی، یا پھر لیڈرز کے ذاتی کالجز، ہاسپٹلز اور بینکس کے کاروبار، زمینات، شادی خانے اور بلڈنگز کھڑا کرنے کے لیے ووٹ دے رہی؟ یہ عمارتیں، ان عمارتوں کی بلندی چیخ کر چلا کر بیان کر رہی ہے کہ کتنی دیانت، کتنی ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ 65 برس کے سفر کو مجلس نے طے کیا، اور ان ویران میدان کو آباد کیا تعلیمی درسگاہوں کے ذریعے۔ ایک طرف انجینئرنگ کالج ہے تو اس طرف MBA، تو اس کے بازو میں کالج آف فارمیسی ہے، تو اس کے ادھر بغل میں کالج آف آرکیٹیکچر ہے، M.Pharm ہے، ME ہے، MBA ہے، MCA ہے، B.Pharm ہے، فارما D ہے، آرکیٹیکچر ہے۔ سر، عمارتوں کی بلندی بتا رہی ہے کہ یہ کاروباری ادارے ہے، فیملی بزنس امپائر ہے، لیکن ہر سال آپ کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ یہ تعلیمی ادارے، یہ عمارتیں، انجینئرنگ کالج، MBA، کالج آف فارمیسی، کالج آف آرکیٹیکچر، M.Pharm، ME، MBA، MCA، B.Pharm، فارما D، یہ سب مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر کہاں ہے؟ اور ان سب سے مسلمانوں کو آج تک کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے مجلس اتحاد المسلمین کے 10 سال کی آڈٹ رپورٹ، اکاؤنٹس بیلنس شیٹ اور انکم ٹیکس چیک کیا، جس میں نہ تو 10,000 کروڑ کے اثاثوں کا ذکر ہے، نہ یہ ادارے درج ہے۔ آپ تقریروں سے ہزاروں کروڑ کی بات بتا رہے ہیں، لیکن
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिशियल अकाउंट्स, ऑडिटर्स और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी साहब और डिपार्टमेंट्स के दस्तखत के मुताबिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 1 रुपया भी नहीं है। जी हां, ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 10 साल से हर साल कभी 1 करोड़ आए तो कभी 2 करोड़ आए और फिर उसी साल पूरे खर्च हो गए, 1 रुपया भी नहीं बचा, यही बताया गया। तो फिर हर साल आप जो इदारे, बड़ी बड़ी इमारतें और हजारों करोड़ के असासों का जिक्र कर रही, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर तो नहीं है। आपकी बात को मानना या पार्टी की बात को मानना, आपकी तकरीर को मानना या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अकाउंट्स रिपोर्ट को मानना, जिस पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की भी साइन है, ये सारे कारोबारी इदारे और हजारों करोड़ के असासे दर हकीकत किसके नाम पर है, ये आप खुद मुसलमानों को बता दीजिए। आप बार बार ये भी कहते हैं कि यह सब मुसलमानों का है, तो फिर बताइए कि 65 साल में इन कारोबारी इदारों से क्या आमदनी हुई, कितना मुनाफा हुआ और वो सब किसके नाम पर है, किसके अकाउंट्स में है, इससे मुसलमानों को क्या फायदा पहुंचा। अगर ये मुसलमानों के है तो क्या आपने मुसलमानों के नाम पर वक्फ कर दिया या फिर सिर्फ तकरीर में बोल बचन की बात है। इन सब कारोबारी इदारों का पॉलिटिकल पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से क्या ताल्लुक और मुसलमानों पर एहसान कैसा। और जब सियासी इनकलाब आया, सियासी मौके आए, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दक्कन मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम की इजाजत हासिल की। जब मौका आया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज हासिल किया। दस्तूर ने जो इख्तियार दिया मुसलमानों को अपने तालीम अखलियतों को बशमूल मुसलमानों को अपने तालीमी इदारे कायम करने का, उसको चलाने का, उस दस्तूर के हुकूक को हासिल किया और उसके जरिए दक्कन मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया। मजलिस का जब दारुस्सलाम मिला तो सबसे पहले ओवैसी ITI सेंटर कायम हुआ। मिला सबसे पहले तो ये इधर इधर सीधे हाथ पे जो इमारत है, इसका नाम नूर महल है, तो इस नूर महल में स्कूल का क़याम अमल में लाया था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। मजलिस सिर्फ सियासत नहीं पुकारती, मजलिस ने काम किया, वहां स्कूल बनाया, वहां ITI सेंटर बनाया और उसके बाद में यहां पे मलगियां बनाई बाहर, उसके जरिए मजलिस का काम का आगाज हुआ। आज ओवैसी हॉस्पिटल खुद बता रहा है, उसकी बुलंद इमारत बता रही है कि हमारे इरादे कितने बुलंद थे, हमारा अज़्म कितना बुलंद था, हमारा मकसद कितना बुलंद था। आपके इरादे, आपका अज़्म, यह सब आपका फैमिली बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के काम में आया। बेशक जब सियासी मौके आए तो हर मौके पर जमीनात और ऊंची इमारतें खड़ी हुई। बेशक मुसलमानों के नाम पर दक्कन मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज लिया गया, लेकिन यह सब सियासी मौकों के मुसलमानों के नाम पर लिए गए इदारे ना कोई सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ना NGO ऑर्गेनाइजेशन है, ना मुसलमानों के लिए फ्री और कोई फायदामंद है। इसी तरह दारुस्सलाम बैंक भी है, जिसका आप कभी जिक्र नहीं करते। क्यों दारुस्सलाम बैंक को अपने आप से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अलग करे हुए हैं आप, जबकि दारुस्सलाम बैंक भी अवैसी फैमिली बिजनेस एम्पायर का एक हिस्सा है। खुद सालारे मिल्लत इस बैंक के फाउंडर है, असदुद्दीन अवैसी साहब चीफ पैट्रॉन, और आप खुद चीफ एडवाइजर है। ये वही इदारा है जहां ओल्ड सिटी के मुसलमानों का जर जेवर जमीन जायदाद 15 से 25% सूद पर गिरवी रखा हुआ है। क्यों नहीं कहते आप कि यह भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है और मुसलमान कौम पर एहसान है। क्या फर्क है बड़ी बड़ी इमारतों के इदारे, दवाखानों और दारुस्सलाम बैंक में? कुछ नहीं, सब अवैसी फैमिली बिजनेस एम्पायर है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है, कारोबार है, बिजनेस है, धंधा है, जो आवाम से करोड़ों रुपया लेकर मुनाफे पर चलाए जाते हैं। इन सब के मुनाफों का ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फायदा है और ना तो मुसलमानों को। तो फिर ये सब अवैसी फैमिली कारोबारी इदारों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जोड़कर मुसलमानों पर कैसा एहसान जता सकते हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशन और खवानीन के हिसाब से
पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से और खुद असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन आप हर साल अवैसी फैमिली बिजनेस के कारोबारी इदारों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कहकर मुसलमानों के लिए सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, जिसका ना तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक है और ना तो मुसलमानों से। असद साहब कुछ कहते हैं और आप कुछ बताते हैं। हमारे दवाखाने किसी दवाखाने से कम नहीं, चाहे ओवैसी हॉस्पिटल हो या असरा हॉस्पिटल हो। क्या ये कामयाबी व कारनामा नहीं है? अवैसी हॉस्पिटल हो या असरा हॉस्पिटल, ये दोनों भी कारोबारी इदारे हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, धंधा है, जो आवाम की जेब से पैसा निकाल कर चलाए जाते। बेशक ये बहुत बड़ी कामयाबी और एक बड़ा कारनामा है, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके फैमिली बिजनेस की कामयाबी है, आपके फैमिली बिजनेस के लिए बड़ा कारनामा है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में असरा हॉस्पिटल 1200 बिस्तर तक पहुंच गया। असद साहब की क़यादत में आपके फैमिली हॉस्पिटल बिजनेस में 1200 बेड्स तक कामयाबी पहुंच गई, तो आपको बहुत मुबारक, क्योंकि जितने बेड्स बढ़ेंगे उतना आपके कारोबार में मुनाफा होगा। कोई मुसलमान अगर आकर आपके दवाखाने के एक बेड पर पड़ गया तो मिनिमम 25 से 50 हजार रुपये दिए तक वो बेड से नीचे नहीं उतर सकता। 1200 बेड्स का मामूली तौर पर हिसाब लगाएं तो एक दिन का आपको 6 से 10 करोड़ का मुनाफा है, जो बेशक मुसलमान की ही जेब से निकलेगा। असद साहब की क़यादत में आपके फैमिली बिजनेस को हर रोज करोड़ों रुपए का मुनाफा है, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर और मुसलमानों पर एहसान कैसा? 1000 से जायद दिन में 2000 के आउट पेशेंट होते हैं असरा दवाखाने में। ओवैसी हॉस्पिटल में 1500, करीब 3500 4000 की ओपी रहती है। अवैसी और असरा हॉस्पिटल्स में डेली अगर 4000 आउट पेशेंट्स आते हैं तो वहां 150 रुपये ओपी कंसल्टेशन चार्जेस है। वो आपका 20 रुपये में 3 महीने वाला वर्ल्ड वाइड चैलेंज हमने उसी वक्त जीत लिया था, तो 150 के हिसाब से डेली आपको 6 लाख रुपए का सिर्फ आउट पेशेंट से फायदा हो रहा, और महाना 1 करोड़ 80 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ आउट पेशेंट से आपको कमाई हो रही, जो बेशक गरीब मुसलमान आपको अपनी जेब से दे रही। कमर्शियल हॉस्पिटल है, बिजनेस है, कारोबार है, धंधा है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, कहीं डिस्काउंट तो कहीं एक पे एक मुफ्त स्कीम। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर मुसलमानों पर एहसान कैसा? इस माह 28 दिन का फरवरी का महीना 1052 इन पेशेंटों ने इलाज करवा के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया, तो सिर्फ असरा हॉस्पिटल से। ओवैसी हॉस्पिटल से 900 चिल्लर सिर्फ फरवरी के महीने में 900 इन पेशेंट इलाज करा के अपने घरों को गए। क्या किसी को अंदाजा है ये कितना बड़ा काम है? अवैसी और असरा हॉस्पिटल में फरवरी के महीने में 2000 इन पेशेंट्स इलाज करवाकर अगर डिस्चार्ज हुए और अपने घरों को गए, तो हर पेशेंट आपको अपनी जेब से मोटी रकम भी दिया है। हॉस्पिटल के बेड से उठकर उसको घर को तो वापस जाना ही है। अगर जल्दी नहीं गया तो पेशेंट का घर और उसके घर वालों का जेवर आपके ही दारुसलाम बैंक में गिरवी रखा देना पड़ता। दारुसलाम बैंक से सूद लेके अवैसी और असरा हॉस्पिटल के चार्जेस पे नहीं करा तो पेशेंट की लाश निकलती, और वो भी पैसा दिए तक नहीं छोड़ते। एक पेशेंट का बिल कम से कम सिर्फ 50,000 भी बना तो फरवरी के महीने में आपको मिनिमम 10 करोड़ का फायदा हो गया, जो बेशक गरीब मुसलमान आपको अपनी जेब से दिए। कमर्शियल हॉस्पिटल है, बिजनेस है, कारोबार है, धंधा है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, कहीं डिस्काउंट तो कहीं एक पे एक मुफ्त स्कीम। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर मुसलमानों पर एहसान कैसा?